کافی ساری میڈیسن ایسی ہیں جو انڈیا سے امپورٹ ہوتی ہیں ہماری. وہاں جو ان کا ریٹ ہے نا، مثال کے طور پہ ایک ویکسین آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر وہاں پر ریٹ ہے 23,000 تو یہاں وہ 1.5 लाख کی بکری ہے. دبئی میں آپ چلے جائیں، وہاں سے سپلیمنٹ انڈیا کے مشہور ہے. آپ جتنی بھی میڈیسن دیکھیں گے نا، جو ریسرچ ہے وہ انڈیا کی ہی ہے. انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں. انڈیا نے ہم وہاں پہ لانچ کر دیا ایپل. فرسٹ آف آل ہماری حکومت ہی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کی ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے ہی نہیں کسی کے. انڈیا کا جو کسان ہے اس کو ٹوٹلی سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کو بجلی پہ بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. پاکستان کی انٹری ہے اسپیس پر ہمیں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ کب ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ملک ہے نا، سونے کی چڑیا کا نام دیا گیا ہے اسے، کہ یہاں کی جو زمین ہے بہت اچھی ہے. کسان کو جب اس کا پورا حق ہی نہیں ملے گا تو کسان زمین پہ کیا اگائے گا. اگر وہ اب حکومت کر رہے ہیں تو ان کی حکومت کی نہیں سمجھ آ رہی، اب ان کی آپس میں لڑائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ولید عبداللہ. سیف بٹی. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافو ریئیکشنز. ویورز، انڈیا اس وقت پوری دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے بہترین انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دے رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل ہب بنتا جا رہا ہے. تقریباً دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں انڈیا میں انویسٹ کر رہی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ امریکہ نے اپنا 3.6 ملین چائنا کی مارکیٹ سے نکال کے انڈیا کی مارکیٹ میں انویسٹ کر دیا ہے. انڈیا تمام ملکوں کی انویسٹمنٹ کو انشور کرتا ہے، ان کے انویسٹرز کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ کمپنیز وہاں پہ گرو کر سکیں، وہ بھی ترقی کر سکیں، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ انڈیا کی عوام کو ملتا ہے. جبکہ ہم اگر اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں اس وقت انویسٹ نہیں کر رہی. بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ کو رول بیک کر کے واپس جا چکی ہیں اور دوسرے ملکوں میں انویسٹ کر رہی ہیں. پاکستان اور انڈیا کی اس فائنینشیل سچویشن کے بارے میں پاکستان کی عوام کی کیا رائے ہے، آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان کی رائے جانتے ہیں. ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. سیف صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سیف صاحب، انڈیا اس وقت کار انڈسٹری میں پاکستان سے بہت آگے جا رہا ہے. پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیسلا کو لے آیا ہے اور دوسری ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس نے اپنے ملک میں گاڑیاں لانچ کر دی ہیں. پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان بھی انڈیا کو اس فیلڈ کے اندر ٹکر دے سکے؟ فرسٹ آف آل پاکستان کو اپنی کار انڈسٹری کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنی آپ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کی پروڈکشن کو اور بڑھائیں اور ان کو برانڈ لے آئیں. جیسے انڈیا نے کافی ترقی کی ہے کار انڈسٹری کے حوالے سے، انہوں نے اپنے برانڈ لانچ کر دیے ہیں اور ان کی جو گاڑیوں کی پرائز ہے اس میں بھی بہت زیادہ ریلیف ملا گیا ہے عوام کو. ہر عوام یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا ایزیلی گاڑی خرید سکتا ہے. ایسے ہی پاکستان میں بھی انہیں چاہیے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں اور پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی کار انڈسٹری کو آگے بڑھائے، تو ہمارا ملک اسے ترقی بھی کرے گا اور کافی کامیابی ہوگی. انڈیا نے اپنی نینو کار لانچ کر کے نا پوری دنیا کے اندر نینو کار لانچ کر کے، اور انہوں نے 1 لاکھ کے اندر ایک گاڑی جو ہے وہ انڈیا کے اپنے عوام کو دی تھی. پاکستان سوزوکی کے اوپر اگر کام کرے تو سوزوکی موٹرز کیا پاکستان میں سستی کار لانچ کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے اگر یہ کام کریں تو. کام کرنے سے ہی ہے، ظاہری بات ہے تھوڑی سی یہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کافی ترقی کر سکتا ہے. پر یہ کہ ذرا فوکس نہیں کر رہے ان چیزوں پہ. انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کچھ ہو کہ کار انڈسٹری پہ جب سے کام ہوگا تو کچھ نہ کچھ بنے گا، انڈسٹری کو کچھ ملے گا تو پھر ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا پاکستان کی حکومت ذمہ دار ہے، پاکستان کی پالیسیز ذمہ دار ہیں، یا انڈیا کی پالیسیز اور حکومت دونوں ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے کار انڈسٹری گرو کر رہی ہے؟ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں. وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور ہر چیز میں ان کا یعنی کہ نا کافی اچھا کردار رہا ہے. ہماری جو حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی روز بہ روز کوئی نہ کوئی نیا ہی کام سامنے آ رہا ہے. فرسٹ آف آل ہماری حکومت ہی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کی ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے ہی نہیں کسی کے بھی. جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے تو ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بن سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی حکومت میں اسٹیبلٹی آ جائے اور پالیسیز کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تو پاکستان انڈیا کو کار انڈسٹری میں ٹکر دے سکتا ہے؟ بے شک اس میں پاکستان بڑی اچھی ٹکر دے سکتا ہے جب ہماری حکومت کے جو ہیں سیاستدان اس چیز پہ فوکس کریں گے تو ظاہری بات ہے کاروبار وسیع ہوں گے تو ہم انہیں اچھے سے ٹکر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پاکستان اور انڈیا کی فون انڈسٹری جو ہے
उनको आप कहाँ देखते हैं? इंडिया की फ़ोन इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुकी है। इंडिया ने एप्पल को भी लॉन्च कर दिया है। एप्पल स्टोर उसने पूरी दुनिया में लॉन्च करने के बाद इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे क्या इक़दामात करे कि जिसकी वजह से बड़ी-बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान में अपने फ़ोन हब्स जो हैं वो कायम करें और पाकिस्तान की फ़ोन इंडस्ट्री ग्रो करे? जी, ऐसे ही है। इसके भी वही पिछले सवाल के जैसे जवाब है कि इस इंडस्ट्री में जो हमारी मोबाइल्स जो शॉप्स हैं, जो ऐप्स बने नहीं, तो इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा भी है और मोबाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि अब हमारे मुल्क में जितने भी हैं, हम आगे से प्रमोट कर रहे हैं सारी चीज़ें मोबाइल की। हमें चाइना से लेके दिए जा रहे हैं या हमारे जो पहले के जो चल रहे हैं मॉडल मोबाइल के, वही चल रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। बाकी ये है कि इसके ऊपर भी अगर काम किया जाए, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, इस पे वर्क किया जाएगा तो इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक़्त अपना अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया में कामयाब हो जाए? इंशाल्लाह कर सकता है, अगर ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कर सकता है। क्या आप समझते हैं कि सिलिकॉन वैली जो इंडिया ने बहुत अर्सा पहले वहाँ पे कायम कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी कंप्यूटर इंडस्ट्री में उसने एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। कि पाकिस्तान को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से पहले वो सिलिकॉन वैली यहाँ पे दे, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल को ट्रेन किया जाए और पूरी दुनिया में जो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बना के दें और पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट आए और पाकिस्तान टेलीफ़ोन इंडस्ट्री में ग्रो करे। ये बेशक पाकिस्तान में ये टैलेंट मौजूद है, अभी वो सामने नहीं आ रहा। हमारे माशाल्लाह जो जितने भी नौजवान दोस्त हैं, भाई हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी इस हद तक यानी कि क्रिएटिव हो चुके हैं कि वो अपनी ऐप्स बना सकते हैं और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि वो सामने नहीं अभी आ रहे। तो जैसे ही उन पर यार के कोई काम होगा, उनको सपोर्ट की जाएगी तो वो सामने आएँगे तो पाकिस्तान इस चीज़ में बड़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह किसी से कम नहीं है, काफ़ी क्रिएटिव है। इंडिया ने रिसेंटली अपना एक मिशन चंद्रयान जो है वो चांद के ऊपर भेजा है और बहुत ही कामयाब मिशन साबित हुआ है। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान और इंडिया कहाँ पे एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं? अभी देखें इंडिया तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, स्पेस पे पहुंच गए, तो पाकिस्तान तो अभी सियासत के अंदर ही घुमा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान के साइंस जितने भी साइंसदान हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा तो वो भी पहुंच सकते हैं। वो जाएंगे तो पाकिस्तान का और ज़रा नाम बढ़ेगा और तरक्की भी करेगा। इससे ये है कि हमारा मुल्क ज़्यादा और बेनिफिट मिल जाएगा जब ये जाएगा ना उधर नासा में पहुंचेगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इंडिया तो हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, हर हिस्से में तरक्की कर रहा है, तो काफ़ी हर चीज़ में वो आगे बढ़ गया। और ये है कि ये पाकिस्तान हमारा जो है अभी हर माशियत के लिहाज से हर चीज़ में पीछे रह गया है। 50,000 साल जो पहले दौर था वही तकरीबन अब हमारे सामने आ रहा है, जो हम लोगों से मिसालें सुनते थे, अब वही हमारे सामने आ रही हैं। अगर ये है कि हमारे जितने भी साइंसदान हैं अगर उनको प्रमोट किया जाए, तो वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये है कि ये सब प्रमोट पे आता है कि उन्हें कोई भी किसी भी लिहाज से अभी कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया जा रहा, कोई उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम उधर अब अटके हुए हैं एक ही जगह पे। हमें समझ नहीं आ रही किसी को भी। इसलिए हमारा ये अब सवाल कि मैं अपना एक सवाल आगे भेजना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो एक चीज़ को जो अटके हुए हैं सियासत के अंदर, इससे साइड होके हमारे मुल्क के बारे सोचें ताकि हम भी तरक्की करें। और हमारे मुल्क में काफ़ी नौजवान लोग ऐसे हैं जो तरक्की करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप उन्हें प्रमोट करें, वो तरक्की करेंगे। हमारे साइंसदान बहुत अच्छे हैं और काफ़ी इल्म रखते हैं, हर चीज़ में इल्म रखते हैं। हमारे इंजीनियर्स हैं, वो हर चीज़ में काफ़ी इल्म रखते हैं। वो अगर उन्हें रिलीफ मिलेगा तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम हर जगह में रोशन कर सकते हैं। हम जो खुद आए दिन यूट्यूब पे न्यूज़ पे सुनते हैं कि आज फलां जगह ये हुआ वो हुआ, अगर उन्हें प्रमोट किया जाएगा तो वो कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, तो हम दुआगो हैं, सब भाई मिलकर दुआ करें आप भी कि हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बस अपील है कि कोशिश की जाए। जितना भी इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की का गैप आ रहा है उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेन वजह है वो जो है हुकूमत की पॉलिसीज हैं, हुकूमत की स्टेबिलिटी है। आप समझते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कामयाबी से अपना टेन्योर पूरा करे और इन चीज़ों के ऊपर काम करे तो पाकिस्तान दुनिया में एक भरपूर मुल्क बन के उभर सकता है।
बेशक पाकिस्तान आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात की है, अगर इस पर काम किया जाएगा तो पाकिस्तान काफ़ी ममालिक से आगे जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग तरक्की करना अब चाहते हैं। पहले और बात थी, अब हर लोग चाहते, हर मुसलमान ये चाहता है कि हम तरक्की करें। तो इंशाल्लाह अगर इसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा अवाम को, तो अवाम बहुत हद तक तरक्की करेगी, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। और हम रोज़मर्रा के इस दौर में देखते हैं कि अवाम खुद जद्दोजहद कर रही है तरक्की करने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम खुद अवाम का हिस्सा हैं उसमें से, हमें चाहिए कि हम खुद कोशिश करें। तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है, बस अपील आखिर पे फिर वही आ जाती है कि हमारी अगर हुकूमत चाहेगी तो हम तरक्की करेंगे। तो हमारी सिर्फ यही अपील है, हमारे तमाम मेरी बहनों से, भाइयों से सिर्फ यही अपील है कि कोशिश करें। हुकूमत जो भी है, हमें हुकूमत से कोई नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि हमें रिलीफ चाहिए और हमारे हकूक पूरे होंगे तो हम तरक्की करेंगे। अगर हमारे हकूक ही पूरे ना होंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें ये सड़कें, ये रोड हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए रिलीफ। हमारी माशियत के लिहाज से हमारे मज़दूर तबका को, हमारे बहन भाइयों को जितने भी जो हकूक इंसानियत में आते हैं, हमें वो चाहिए। वो होंगे तो हम कामयाब होंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। वलीद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इंडिया के साथ अगर इसका मुवाजना करें टेलीफोन इंडस्ट्री में, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टेलीफोन इंडस्ट्री में क्या मुकाबला है या नहीं? जी, इसमें बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है और पाकिस्तान वो ही है जो कर रहा है, बाहर से ला रहा है मोबाइल, वो ही दे रहा है। यानी कि इंडिया ने हम वहाँ पे लॉन्च कर दिया एप्पल, तो वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है। तो जो है पाकिस्तान, ये बस चाइना से मोबाइल ला रहा है और हमें दे रहा है, और बस इसके अलावा इसकी कोई नहीं, यानी कि कोई बेसिकली कंपनी नहीं है, ये लॉन्च नहीं कर रहे कोई अपने फ़ोन। अगर चाहिए करें तो हुकूमत को भी फ़ायदा है इससे, तो जो करेंगे उनको भी फ़ायदा है, कंपनीज़ को भी फ़ायदा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे। इनकी जो टोटली जो है ना, इनकी ध्यान है वो है सियासत पे ही है। तो ये सियासत का भी इस तरह है कि इनको ये ही नहीं पता, हमें ये ही नहीं पता कौन कर रहा है हमारी सियासत। मिसाल के तौर पे 5 साल भी किसी के पूरे नहीं हो रहे जब से हमने होश संभाली है, तो तकरीबन है लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं जब से होश संभाली है। इनका यही है सियासत का, ये है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंडिया और पाकिस्तान की ज़राअत का क्या मुकाबला है? इंडिया और पाकिस्तान की ज़राअत में ये है, इंडिया को ना, इंडिया का जो किसान है उसको टोटली सब्सिडी दी जा रही है, उसको बिजली पे भी सब्सिडी दी जा रही है, उसको खाद पे भी सब्सिडी दी जा रही है। तो जो हमारे हैं, ये हमसे, हमारा मिसाल के तौर पे जो खर्चा आ रहा है ना, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत में मक्की की काश्त हुई है और गंदम भी हुई है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस ज़राअत का, तो इस वजह से ठेके वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो अब चल रही है सूरत-ए-हाल, वो ऐसे है कि तकरीबन फ़ी एकड़ का जो ठेका है ना, वो है चल रहा है इस वक़्त 2 लाख, 1,80,000। तो काश्त होती है मकई की काश्त, तकरीबन 3 फसलें काश्त हो जाती हैं 1 साल में। तो जो 1 साल में काश्त होती हैं तकरीबन 2 लाख रुपए ठेका मिला के ना आ रहा है खर्चा, लेकिन वो बिक रही है 1.5 लाख का एकड़, इतने का। आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसान को अपनी मेहनत का भरपूर सिला नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान की किसान को, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इंडिया बहुत आगे है, हमसे बहुत आगे है। उनको ट्रैक्टर पे सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि जो मशीनरी वो ले रहे हैं उसमें सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में किसी को कुछ सब्सिडी ऐसे दी जा रही है। मिसाल के तौर पे खाद पे लिखा है 3200 की खाद, और इसमें सब्सिडी है 23, मिसाल के तौर पे 1000 सब्सिडी है, वो होगी 2200 की, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में हमें मिल रही है 4200-4300, लेकिन हमें नहीं मिल रही। वो भी जो बड़े किसान हैं, जो काफी बड़े हैं, उनको शायद मिल रही है, जो सोर्सेज बताते हैं, लेकिन जो किसान है 1-2 एकड़ वाले, 5 वाले, 10 वाले, उनको तो मिल ही नहीं ना रही। इंडिया ने अपना एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, उसने अपने चंद्रयान मिशन को कामयाबी से हमकिनार किया। ये जो आपने अभी बात की एरोस्पेस इंडस्ट्री की, ये हम ना, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही हमें पता है बस है, लेकिन हमें ये मालूम है इनकी रिसर्च है,
रिसर्च पूरी है, लैब है, सब कुछ, लेकिन हम ना ऐसे ही सुनते हैं, कभी अखबार पे देख लिया, कभी टीवी पे सुन लिया, लेकिन हमें कुछ भी कहीं भी नजर नहीं आता इन्होंने कोई काम किया हो इस पे, कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, लेकिन अगर हुकूमत इसे सपोर्ट करे तो पॉसिबल है ये तरक्की करें या कोई लॉन्च करें। ये तो हमें नहीं पता किसकी बदकिस्मती है, अवाम की या रिसर्चर्स की। हुकूमत की तो बदकिस्मती है ही है ना। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये बताया जा रहा है हमें कि पाकिस्तान की एंट्री है स्पेस में, पर हमें कभी देखने में नहीं आया कि कब हुई है। हमें इसका पता ही नहीं है कि जी ये कहते हैं जी एंट्री हुई है, रिसर्च करते हैं, पर हमें इसका इल्म है ही नहीं है कि ये हुआ कब है। बेसिक ये है ना, हमारी आप सियासत को देख लें आप, 5 साल पूरे नहीं होते, इनके रोज़ बरोज़ नई लड़ाइयाँ, जी फलाँ चोर है जी, उसने जी इतना खा के वो बाहर गया चला है। चलो वो चोर है, वो खा के बाहर गया चला है, अब वो चोर आ गया है, अब उस चोर से ले आओ। अब वो हुकूमत कर रहे हैं, अगर वो अब हुकूमत कर रहे हैं तो उनकी हुकूमत की नहीं समझ आ रही, अब उनकी आपस में लड़ाई है। उनकी आपसी लड़ाइयों में जो गरीब अवाम पिस रही है, उसका क्या कसूर? उसका कसूर ये है कि वो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, वो जहाँ यहाँ पर नौजवान हो रहे हैं। नौजवानों के आप ये हिसाब लगा लें, अब खुद हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते थे, वो खुद यहाँ से बाहर गए हैं। किसके लिए गए हैं? अपने पेट की खातिर, अपने वालिदैन की खातिर, अपने बहन भाइयों की खातिर कि हम उन्हें अच्छा खिला सकें, अच्छा पहना सकें, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। अपना ये हमारा जो मुल्क है ना, सोने की चिड़िया का नाम दिया गया है इसे, कि यहाँ की जो ज़मीन है बहुत अच्छी है। अब वो भाई ने कास्ट के बारे में आप उनसे बात की है, तो वो भी आपको बता रहे हैं। इसी लिहाज से हमारी कास्ट भी पीछे है। किसान को जब उसका पूरा हक ही नहीं मिलेगा, तो किसान ज़मीन पे क्या उगाएगा? वो अपना खून पसीना एक करके, हम खुद देखते हैं भाई, ये खुद किसान है, काम करते हैं, मैं खुद अपनी आँखों से देखता हूँ जब ये पानी लगाने जाते हैं रातों को, सर्दियों में जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं, और ये अपने पाँव के साथ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़मीन के ऊपर जो साँप वग़ैरह होते हैं, वो इनके पैरों के नीचे आते हैं, ये पानी लगाते हैं। यानी कि ये अपनी जान को दाँव पे लगा के ये सारी काम करते हैं, पर इन्हें वो रिलीफ़ ही नहीं मिल रहा। ना कोई इन्हें अच्छी खाद मिल रही है, ना कोई अच्छी चीज़ मिल रही है जिससे ये अपनी ज़मीन को अच्छे से बना सकें। ना कोई रिलीफ़ है, ना कोई ट्रैक्टर में, ना कोई बिजली में, हर चीज़ में महँगाई है। रोज़ बरोज़ इनके ऊपर जो टैक्स लगे जा रहे हैं, खाद के ऊपर जी, हर चीज़ पे, तो एक तो ये देख लें आप, बिजली के बिल में उसके ऊपर हर चीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, टीवी से लेकर हमारे घर जो चीज़ यूज़ हो रही है, हम हर उस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। हम खाने पे टैक्स दे रहे हैं, हम मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, हम बैलेंस करवा रहे हैं, उस पे टैक्स दे रहे हैं। हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा जब हम कहीं पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो उस पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स हम ऑलरेडी हर चीज़ पे दे रहे हैं, पर उसका रिलीफ़ नहीं मिल रहा। उसका रिलीफ़ नहीं मिल रहा अवाम को, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। मुल्क के हालात ख़राब हैं। आप खुद देखेंगे, आप गाँव की साइड पे चले जाएँ, अवाम के पास कई इलाके ऐसे हैं, वहाँ पर बिजली का नाम निशान नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है। क्यों नहीं है? हुकूमत जो है वो सिर्फ़ आपस में ये आपसी झगड़ों में लगे हुए हैं जी, फलाँ को अंदर कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। चलो उसने जो किया था, चलो जी हम कह देते हैं चलो जी उसने गलत किया, तो ये ठीक कर लें। अब ये भी अगर ठीक नहीं करेंगे, ये भी आपसी झगड़ों में पड़े हुए हैं, जलसे निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो उसका अवाम को क्या फ़ायदा है? अवाम इनके जलसे जुलूसों में जाती है, पैसे दे के बुला लिया, वो अपने पेट की खातिर चले जाते हैं। आप खुद देखते हैं, हम खुद इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हम देखते हैं, हमारे पास बाज़-औक़ात लोग आ जाते हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे जलसे में चलें, हम पेट्रोल देंगे, हम आपको वहाँ खाना देंगे, रिहाइश देंगे, पर ये है, हम तो चले जाएँगे, पैसे की ज़रूरत है ना, किसको पैसे की नहीं ज़रूरत है? अपने घर बच्चों को पालना है, माँ-बाप को देखभाल करनी है, उनकी मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन पे आ जाएँ आप, अब मेडिसिन के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, हर चीज़ महँगी हो रही है। जो अब हार्ट पेशेंट है, उसकी मेडिसिन आए दिन महँगी हो रही है। अब ये जो वैक्सीन्स हैं, जो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडिया से इम्पोर्ट होती हैं हमारी, वहाँ जो उनका रेट है ना, मिसाल के तौर पे एक वैक्सीन आती है, मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर रेट है 23,000, तो यहाँ वो 1.5 लाख की बिक रही है पाकिस्तान में। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया मेडिकल इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा आगे है। उनके जो ब्रांड्स हैं ना, उनके हमारे जो जी गेट्स आ गए, सामी आ गई, ग्लेक्सो आ गई, एबट आ गई, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उनके जो हैं फ़ॉर्मूले चलते हैं, उनका एक ही ब्रांड होगा, उनके साल्ट चलेंगे,
वो 60 लिखते हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं ना वो 60 लिखते हैं, 60 लिखेंगे वो, उनको ये जो है ना एजुकेशन इस हिसाब से दी जाती है, उनको जो फार्मासिस्ट है ना वो उन्हें समझाया ही इस हिसाब से जाता है कि आपने 60 में मेडिसिन देनी है। हमारे इधर है, हर डॉक्टर ने एक अपना ब्रांड चूज किया हुआ है, उसके ऊपर वो चल रहा है, उसने आवाम से रिलीफ लेना है, उसने आवाम से रिलीफ लेना है। वो मरीज आ गया, उसने ये नहीं देखना ये कितना गरीब है, उसने बस ये देखना ये मेडिसिन है, बस इससे हमें पैसे लेने हैं, हमारे घर में एसी होना चाहिए, हमारे घर में गाड़ी होनी चाहिए, वो ये देखते हैं। मेडिसिन के लिहाज से इंडिया हमारे से काफी ज्यादा आगे है। इंडिया ने आयुर्वेद के अंदर जो है उसकी जो जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं उसके ब्रांड भी पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये है कि ये जितने भी ये जो आप बता रहे हैं ना कि वो जड़ी बूटियों पे ये जो सर्च करते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी आती है, लोग बाहर से खुद लेके आते हैं। दुबई में आप चले जाएं, वहाँ से सप्लीमेंट इंडिया के मशहूर है। आप जितनी भी मेडिसिन देखेंगे ना, जो रिसर्च है वो इंडिया की ही है, और बाहर आप चले जाएं वहाँ डॉक्टर भी इंडिया के ही हैं काफी, और इनकी मेडिसिन बाहर भी जाती है, यूरोप कंट्री में भी जाती है। और जड़ी बूटियों का हिसाब लगा लें, हमारी ये खुद की थी, हमारी खोज थी, ये जड़ी बूटियों की पाकिस्तान की थी, हमारे बुजुर्गों की थी, हमारे पैगंबरों की थी, तो हमारे मुस्लिम ममालिक की थी, हमारे नबियों ने इस पर रिसर्च की थी, उन्होंने हमें बताया था, कुरान पाक में भी हमें बताया था, हमारे हकीम लुकमान साहब, कुरान पाक में भी उनका जिक्र है, उन्होंने रिसर्चें की थी ये सारी। तो ये नॉन मुस्लिम जो है उस पर वो अमल कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, उनके सियासतदान जो है वो हमारे ही कुरान पाक को पढ़ के आगे चल रहे हैं, वो अमल करते हैं अपनी आप को आगे बढ़ाने के लिए। हम अमल भी नहीं करते, पढ़ के हमने साइड पे रखा हुआ है, हमारा मुल्क चल रहा है, हमें ये नहीं पता, हमारी सियासत कोई और चला रहा है, सारा कुछ कोई और चल रहा है। हमारी समझ में बस ये नहीं है कि अवाम को किसी भी चीज़ का रिलीफ नहीं मिला जा रहा, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कार की हो, या मोबाइल की हो, या वो नासा में जा रहे हैं, हमें किसी चीज़ का इल्म है नहीं। हमारा मुल्क पीछे का पीछे वैसे ही वैसा खड़ा है, जैसा पहले आज से 10 साल 20 साल पहले खड़ा था, वैसे का वैसा ही खड़ा है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बना के तो दे दिया, इन्हें समझाया था चलाना ऐसे है, पर इनसे चला नहीं, वो समझ ही नहीं आ रही है कि हमने आगे करना। कार इंडस्ट्री में भी उन्होंने टेस्ला निकाल दी, जो बिजली पे चलती है, तकरीबन उसकी कास्ट आती है तकरीबन 6 रुपए पर किलोमीटर, 7 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारी सारी कार्स हैं जो A to Z बाहर से आती हैं, तो लोग जापानी, क्योंकि चाइना का दौर है आपको पता है, तो जापानी जो कारें आती हैं उनमें थोड़ा बहुत बेहतर है, वो भी तकरीबन जो हमारे जो पेट्रोल है 280 रुपए है, जो ओनर है इनके उनसे करे राब्ता और उनको रिलीफ दे, उनको सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ दे, और ये यहाँ पे आके काम करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम भी आगे जाएंगे, हम भी कोई ना कोई बनाएंगे। हमारे अगर कोई बना ही लेता है तो उसे बैन कर दिया जाता है। कोई मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बना दिया कुछ, अपनी रिसर्च पे कुछ भी किया, तो उसे सबसे पहले ये नहीं, उसकी सलाहियत को नहीं सराहा जाता, उसे सबसे पहले बैन किया जाता है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो इसमें जो A to Z है ना, जो प्रॉब्लम है वो हुकूमत की है, और ये हुकूमत की अल्लाह ही भला करे इनका, हम तो यही कह सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तान की आवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।